পরিবারের লোকও তো আমার পিতাজিও তো বাংলাদেশ থেকে এসেছিল, তাহলে যদি এনআরসি কোনো লোকসানে সবচেয়ে পেলে তো আমার মুখ্যমন্ত্রী তো চলে যাবে। তা আমি বেবকুফ নাকি যে মুখ্যমন্ত্রী চলে যাবে তার জন্য এনআরসি লাগু করব? ত্রিপুরাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱ বাংলাদেশী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শাসন কৰিছে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰ। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে ত্ৰিপুৰা পিপলছ ফ্ৰণ্ট নামৰ ৰাজনৈতিক দলটোৱে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ত্ৰিপুৰাতো এনআৰসি দাবীৰে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদন দাখিল কৰি এই অভিযোগ আনিলে ত্ৰিপুৰা পিপলছ ফ্ৰণ্টে। লগতে টিএফটিৰ দাবী ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰও এতিয়া অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ হাতত। মাত্ৰ 19% জনসংখ্যাৰে ৰাজ্যত সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছে খিলঞ্জীয়া। ভাৰতৰে চামিল হোৱাৰ সময়ত 93% জনসংখ্যাৰ বিপৰীতে বিগত সময়ছোৱাত অনুপ্ৰৱেশকাৰী হেঁচাত 19%ৰে সংখ্যালঘু হ'লগৈ খিলঞ্জীয়া। এক বিস্ফোৰক অভিযোগ। বাংলাদেশী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শাসন কৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱ বাংলাদেশী বুলি এক বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে। त्रिपुरा में ऑल इलीगल इमाइग्रेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कंट्रोल बाय इलीगल इमाइग्रेंट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर तक, आजकल जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑल्सो इलीगल इमाइग्रेंट्स कम फ्रॉम बांग्लादेश। तो जहाँ 93% मार्च इनटू इंडियन यूनियन ड्यूरिंग टाइम, नाउ ओनली वी हैव माइनॉरिटी माइक्रोस्कोपी ओनली 20% बिलो ओनली 19%। दो सो इंडिया गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है इंडिया सिटीजन को बचाना और इंडिया सिटीजन को सेफ सिक्योरिटी ट्रैंक्विलिटी गारंटी देना, ये इंडिया गवर्नमेंट का फर्ज है। तो इसलिए लास्टली हम लोग 68 इयर्स हम लोग अपील करते 68 इयर्स तक हम लोग माइनॉरिटी माइक्रोस्कोपी होकर अभी एक्सटेंशन में है हम लोग। तो इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है। हम लोग उम्मीद करता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाइज करेगा और हम लोग का लैंड राइट्स, हम लोग का इंडिजिनस राइट, फंडामेंटल राइट्स हम लोग जरूर मिलेगा। তোমার জনসাধারণ মুখ্যমন্ত্রী বানাইছে, চাইছে তুমি এখন এই সুন্দর করে কাজ করো, জনসাধারণ কাজ করে দেখাও। আর ওনার জন্মের ব্যাপারটা নিয়ে একটু বলবেন, আপনি বাংলাদেশ থেকে। बीच त्रिपुरा के सीएम बिप्लव देव के बारे में विकिपीडिया का हवाला देकर ये मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि बिप्लव देव बांग्लादेश में पैदा हुए थे और उनका परिवार 1971 के बाद भारत आया था। वो शरणार्थी हैं, इसलिए त्रिपुरा में एनआरसी लागू होने के बाद सबसे पहले यहाँ के सीएम को देश से बाहर किया जाएगा। জন্মের ব্যাপারটা নিয়ে একটু বলবেন, আপনি বাংলাদেশ থেকে ওনাকে পেটে নিয়ে চলে এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরাতে, সেই সময়কার কথা একটু বলবেন। তখন বিপ্লব দেব আপনার পেটে, আপনি যখন ত্রিপুরায় চলে আসেন। তো আমার অবস্থা খুব খারাপই, এদিকে উসকো বাবার খোঁজ নেই, কান্নাকাটি, পেটে সন্তান, সারাদিন শুধু কান্নাকাটি করতাম। যখন ছেলে জন্মের আগেই বাবা এসে গেছে। আমাদের একটা নিয়ম আছে না, 9 মাসে 7 টাপ দেয় লোক খাওয়া টাওয়া, ওর বাবা এসে এই নিয়ম করা। দেওর নাম রাখছে বিপ্লব। কেন? পাকিস্তান ছিল না তখন, বাংলাদেশ হইল না। মুক্তিযুদ্ধের ওই সময়টায় অনেকেরই নাম বিপ্লব রাখা হয়েছে ওই যুদ্ধটার কথা মনে রেখে। আমার ছেলেকে দেখে ওর মনে হচ্ছে নিশ্চিত আমাদের মূল বাড়ি বাবা কাকারা তো কচুয়াতি মাগদারি গ্রাম, সেখানে বাবার এখানে অনেক আগে এসেছিলেন 1964-তে। তো এখানে ত্রিপুরাতে যারা আছেন এরা ম্যাক্সিমামই বাংলাদেশ থেকে আসা। নিশ্চিত আমাদের মূল বাড়ি বাবা কাকারা তো কচুয়াতি মাগদারি গ্রাম, সেখানে বাবার এখানে অনেক আগে এসেছিলেন 1964-তে। তো এখানে ত্রিপুরাতে যারা আছেন এরা ম্যাক্সিমামই बांग्लादेश থেকে আসা। जो अभी एक नोटिफिकेशन जो जारी किया था, आपने हल्का सा बोला भी है बांग्लादेश से यहाँ, तो कितना बड़ा इशू है ये जो इन्फिल्ट्रेशन और जो इलीगल यहाँ रहते हैं? देखिए, इलीगल तो भारत में पहले से ही हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हर स्टेट को यही ये मैसेज गया है, जो आपके यहाँ इलीगल तरीके से जो आए हैं इन आप आइडेंटिफाई करिए और इनको पुशबैक करिए। सभी जगह में हो रहा है, तो ये कोई भी देश करता है। हमारे देश के लोग भी, जो कुछ लोग अमेरिका में चले गए तो अपमान के तरीके से लाके भेजे।
तो क्या हमको कष्ट नहीं होता अपने देश के लोगों को इस तरीके से अपमान करते? लगता है क्योंकि भाई इनके देश में कानून ही ऐसा है, हर देश का कानून अलग अलग होता है, संविधान अलग अलग होता है, उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, सिस्टमेटिकली काम करते जाते हैं। भारत क्या खुला हुआ दरवाजा, कोई भी आए बैठ जाए, कोई भी आए रह जाए, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हमारे देश को हम चलाएंगे, हमारे देश को समृद्धिशाली देश बनाएंगे, तो इसीलिए इस देश में आने के लिए एक नियम कानून है। हम तो बहुत लोगों को इस देश के मान्यता भी देते हैं, बुला के बहुत लोगों को हमने सिटीजनशिप भी दिया है, आपको मालूम है, बहुत लोगों को दिया, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को भी दिया, बांग्लादेश से आए हुए लोगों को भी दिया, बाकी सब देश से भी आए हुए, तो वैध तरीके से होम मिनिस्ट्री उनको अपना देता है। हमारे पाकिस्तान का एक सिंगर हमारे देश में रहता है, उनका हमने भारत में रहने का सिटीजनशिप और परमिशन दिया है, किंतु किसी भी देश में आप अवैध तरीके से रात के अंधकार में आओगे और हमारे देश की इकोनॉमी को आप बर्बाद करोगे, हमारे देश के लोगों का इनकम को आप आघात हानोगे और देश के खिलाफ आप साजिश रचित करोगे और उसमें आपको पाया जाएगा, हम दुपट्टी लगाएंगे उनको। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के हित में करेगा काम, राष्ट्र के हित में करेगा काम और जनता के हित में करेगा। But it seems the alliance